हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। हम लोग लाइव हैं और काफी जद्दोजहद के बाद लाइव हुए हैं, क्योंकि आइडिया ये था कि मैं बीच में आऊंगी। फिर आइडिया हुआ कि अगर मैं बीच में आ भी जाऊंगी तो कलर कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाएगा। ये अभिनव जी का दखल था। तो फाइनली जिस फॉर्म में हम हैं उस फॉर्म में आपके सामने हैं। अभिनव प्रकाश जी और गुरु प्रकाश जी दोनों से बहुत अच्छी बातचीत होती है हम लोगों की। और गुरु प्रकाश जी के साथ तो बात कम, बैंटर ज्यादा होता है। अभिनव जी के साथ चूंकि मिलना कम हो पाता है हम लोगों का, जबकि हम लोग एक शहर में रहते हैं, फिर भी तो अभी बहुत ज्यादा बैंटर वाला मूड नहीं बन पाया है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि वो भी बंधन तोड़ें। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग दोनों का इस सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी, अभी इतने फॉर्मल होकर के थैंक यू शिवराज जी बोलेंगे तो कैसे बात बन पाएगी। बट आज बाबू जगजीवन राम जी की डेथ एनिवर्सरी है और उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने सोचा कि हम ये लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करें, एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करें। इसलिए भी क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रही थी, ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी, फेसबुक पोस्ट देख रही थी, और बहुत अजीब सी बात है कि कांग्रेस के इतने मूर्धन्य नेता डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तक रह चुके और इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने अपने कार्यकाल में, मिनिस्टरशिप के दौरान जब वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, एज अ कांग्रेस पॉलिटिशियन। और ना किसी कांग्रेस के नेता ने उनको याद किया, उन्हें नमन किया, ना कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ऐसा कुछ हुआ। एक व्यक्ति जिनपे शायद लोग आरोप ये लगा सकते हैं कि चूंकि वो उनकी बेटी थी तो वो उन्हें याद करती, मीरा जी के अलावा there was no Congress politician who talked about this. So clearly I get really agitated with and I think all youngsters who are true nationalists and patriots do get agitated with this kind of behavior. So Abhinav Prakash ji, आपसे शुरू करते हैं। आपको क्यों लगता है, why do you think people are so uncomfortable, people in the Congress are so uncomfortable in owning their own legacy? Well, Subhashta, that's a very interesting question, and I think all of us know the answer to that, because in the Congress party, apart from the Gandhi family, no one is supposed to have any presence, any face, or any legacy. So it's not just Babu Jagjeevan Ram who has been neglected. Everyone else, even, I mean, who remembers Sardar Patel before Modi started talking about him? No one remembers Lal Bahadur Shastri in the Congress party. It's only the recent time through social media, people, and there was a movie on him, that the people have got to know about him. And same was done with the Narasimha Rao, whom I rate as one of the top-notch prime ministers of India. I mean, Narasimha Rao's legacy shaped the India which we are living in, but no one remembers him. With Babu Jagjeevan Ram, I think it's also the, let's say, the elite culture, because he did not belong to that elite circle, the elite social circle or the elite educational circle. So he does not fit in the fine wine dine party which Congress is. So in the Congress party, you have to have that pedigree, that you are coming from a dynasty, or you have a very high education abroad. Only then you are part of the circle who should be respected, who should be remembered. And Congress, as of now, at least after Sonia Gandhi took power, the Congress has completely become an NGO party. So Babu Jagjeevan Rao type people who did their politics on the ground have no space there. So I think this is the major reason. No one bothers about people like him in the past, or even the people in the Congress now. Even they have no presence, no voice, no power anymore, if they are the grassroots level politicians. गुरु प्रकाश जी, आप पटना में ही हैं और बिहार की राजनीति कहा जा रहा है कि करवट ले रही है और बड़े नए इमर्जिंग लीडर्स का प्रादुर्भाव हुआ है, जो पावर ड्रेसिंग और पावर बैनर के थ्रू अपने आप को ब्रांड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लोग प्रॉपर कंसल्टेंसी फर्म की तरह और एक सीईओ की तरह पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश की जा रही है बिहार में इन यंग इमर्जिंग लीडर्स की तरफ से। मैं ट्रेडिशनल पार्टीज की बात अगर छोड़ दूं, मैं कांग्रेस की बात छोड़ दूं या किसी भी और आरजेडी की बात छोड़ दूं, जो कि आज उन्हीं के साथ, कांग्रेस के साथ जिनका गठबंधन है आधिकारिक रूप से, ये जो यंग इमर्जिंग लीडर्स हैं, उनका बाबू जगजीवन राम जी को याद न करना। मैं लगातार स्क्रॉल कर रही हूँ गुरु प्रकाश जी, कल से लेकर के आज तक कोई भी नो रिमेम्बरेंस एट ऑल। ये क्या कहता है? जेपी को तो वो लोग सब जा करके वहां पर माल्यार्पण भी किया जा रहा है, उनकी लेगेसी को याद किया जा रहा है,
बाबू जगजीवन राम जी की लेगेसी को याद नहीं करने के पीछे क्या आपको ऐसा लगता है? और मैं ये सवाल बहुत राइडर के साथ पूछ रही हूँ, मैं इसमें आपके कास्ट को अननेसेसरीली इंसर्ट करके नहीं पूछ रही ये चीज, पर बिहार की राजनीति जो कि अपने आप में थोड़ी नहीं बहुत कास्टिस्ट रहती है, स्पेशली चुनावी माहौल में, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा तमाचा है उन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी पे जो कि सर्वहारा की बात करते हैं, जो दलितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं? देखिए सुरक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि इस विषय को आप लोगों ने आज उठाया है। और बाबू जगजीवन राम सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं, सिर्फ देश के उप प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि 1971 का डिफाइनिंग वॉर, मैं तो कहता हूं कि 20वीं शताब्दी का जो सबसे डिफाइनिंग वॉर रहा 1971 का, और पूरे विश्व के इतिहास में शायद वो इकलौता ऐसा युद्ध था जिससे एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे देश के इतिहासकार नहीं कह रहे हैं, ऐसा हेनरी किसिंजर कह रहे हैं, ऐसा गैरी बास कह रहे हैं, जो कि ब्लड टेलीग्राम एक पुस्तक है 1971 के बैकग्राउंड एविडेंस पे, उसको उन्होंने कहा है दैट बाबू जगजीवन राम वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉकिश डिफेंस मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। और उस समय के रक्षा मंत्रियों की फहरिस्त देख लीजिए आप। एक ऐसा व्यक्ति जो गुमनामी में खो जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज भी दर्ज है कि सबसे ज्यादा समय तक लोकतंत्र में चुनाव जीत करके सदन में रहने वाला व्यक्ति। ये व्यक्ति किसी के आशीर्वाद के बाद सदन में नहीं था, राज्यसभा में नहीं था, विधान परिषद में नहीं था, लोकतंत्र से लाभान्वित होकर के लोकतंत्र में एक अटूट आस्था रखने वाला ये व्यक्ति। और यही कारण रहा, अगर आप बाबू जगजीवन राम का कार्यकाल क्रोनोलॉजिकली देखिए तो जब इमरजेंसी का समय आया तब कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम का इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उसके माध्यम से लगातार डेमोक्रेटिक वैल्यूज की लड़ाई, लगातार डेमोक्रेटिक आइडियाज के लिए संघर्षरत रहे। और उनको सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, इनफैक्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट शुड ओ हिम प्रॉब्ली एन अपॉलजी फॉर फॉरगेटिंग हिम। तो कांग्रेस को मैं दोष नहीं देता हूं। मतलब आई थिंक ये तो हमारे देश की मुख्यधारा का इंटेलेक्चुअल का एक नैरेटिव रहा है। कोई भी व्यक्ति जब तक जीवित रहता है वो किसी दल में रहता है, जब वो व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो वो पूरे समाज का हो जाता है। बाबू जगजीवन राम पे सिर्फ कांग्रेस का हक है क्या? कांशीराम पे सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का हक है क्या? सरदार पटेल पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का हक है क्या? सोचना चाहिए हम लोगों को, हम यंगस्टर्स को सोचना चाहिए इस दिशा में। उनके जीवन का जो बॉडी ऑफ वर्क है, मैं एक पुस्तक देख रहा था, राष्ट्रनिष्ठ बाबू जगजीवन राम, अटल जी के साथ ये देखिए, उनकी तस्वीर दिख रही है आप लोगों को। और एक ऐसा व्यक्ति जो दलित विमर्श में आपको सूट नहीं करता है, आपको सूट नहीं करता है। जैसा कि अभिनव ने भी कहा, ये सूट नहीं पहनते थे, ये वाइन नहीं पीते थे, ये अंग्रेजी नहीं बोलते थे। अरे ये शिव नारायणी संप्रदाय के भक्त थे और उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में जो समस्या है, हम हिंदू धर्म में रह के कुरीतियों से लड़ेंगे। आपने पूछा कि आज इनको क्यों बुला दिया गया है, ऐसा क्या है? तो आपके नैरेटिव को ये सूट नहीं करता है। जो लेफ्ट विंग का नैरेटिव है, जो कभी जय भीम बोल देता है, जो कभी भारत तोड़ो शक्तियों के साथ मिल जाता है, ये नहीं सूट करता है, इसीलिए इनको बुला दिया गया है। इतनी सिंपल सी बात है। तो इसमें राजनीतिक पराभव क्या है? बस एक ही जगह मैं दो चीजें करेक्ट करना चाहती हूँ। ये आपका नैरेटिव बोल के किसको सुना रहे हैं आप गुरु प्रकाश जी? नहीं, मैं आपको नहीं, आपको वैसे भी लाल पहना हुआ है आपने, और सावन का पहला सोमवार है, तो आपको आप पे आक्रमण करने का मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। देखिए फिर इन्होंने चुटकी ले ली कि लाल पहना हुआ है आपने। लाल पहना हुआ है मैंने, बिल्कुल सही बात है, पर लाल विचारधारा से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। मैं आश्वस्त हूं भाई। अच्छा अभिनव प्रकाश जी, वैसे आप लोग दोनों ने पब्लिकली कई बार इस विषय पे चर्चा की है, और अभी जो रीसेंट, इनफैक्ट मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि कुशल मेहरा जी के साथ इन दोनों का, गुरु प्रकाश जी का और अभिनव प्रकाश जी का एक संवाद है जो आपको शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बट पॉडकास्ट पे जरूर मिलेगा, चारवाक पॉडकास्ट पे आप लोग जरूर सुनिए इन दोनों को। बहुत प्रखर वक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे और अध्ययन में रत ये दोनों स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइव्स। अभिनव प्रकाश जी, ये जो दलित नैरेटिव के नाम पे एक तरीके की जो ट्रेडिंग की जाती है इश्यूज की, और आइडियोलॉजिकल ट्रेडिंग की जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? और खास करके मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इंडियन राइट विंग जिसको हम कहते हैं, हमेशा उसने शोषितों की बात करने की कोशिश अपने आइडियोलॉजिकल स्तर पे उसने कोशिश की है।
प्रैक्टिस में कितना हो पाया नहीं हो पाया वो एक अलग विषय है, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ कि इस नैरेटिव के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है हम लोग? जी सुभाष, जिसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बाबू जगजीवन राम की बात हो रही थी, people often forget that he also tried to organize the labor in the villages of Bihar, the rural labor movement, and then he was also the labor minister. Now people forget that it's Ambedkar and after him the Babu Jagjeevan Ram who had held the labor ministry in the 1940s and the 50s. So this is a remarkable period in which around for 10 years you have a Dalit leader being the labor minister of India. In the case of Ambedkar, it was the member of the British government, I mean, as the labor member. But the policies which were put in place, all this labor protection bill, the equal pay bill, the maternity leave bill, they all came under both Ambedkar and Babu Jagjeevan Ram. So I think that also led to a problematic, scenario in which the existing power structure never ever was willing to tolerate someone like Babu Jagjeevan Ram because he upended the ideal social order. And then he, as Guru was saying that he was in the parliament for a very long time, he was a great leader, and he also tried to become the Prime Minister of India, which was put down by the other leaders. Then he became the Deputy Prime Minister. So he was seen as a disruptive element. Now, this is interesting that the radical Dalit politics, as Guru was talking about, wants to forget him, thinks that he was too compromising, that he was not ideologically pure, which basically means he was not acting as we wanted him to act. But from the other side, he was seen as too radical and too disruptive. Someone who can come from nowhere and try to become the Prime Minister of India. And you see, the Babu Jagjeevan Ram has been forgotten, but after that, the politics also evolved. Not just the Congress, but almost all political parties now try to manage the Dalit politics, right? They do not want a Jagjeevan Ram who can challenge, who can throw a challenge for the post of the Prime Minister. So that is also true because you have to forget him, you have to demonize him, you have to call him corrupt, that he was a very corrupt politician and all those things. So you have to kill his legacy. Now, which politician? It's a very strange thing because most of the politicians, unfortunately, in this country are not very, let's say, honest. Maybe it's the systematic thing, maybe it's the social structure, maybe whatever. So to point out Jagjeevan Ram as being correct is like beyond me because everyone praises the minister who can get that things done. So you don't go and call them corrupt, you don't go and call out their caste background and everything. But in the case of Jagjeevan Ram, we see that happening. But coming to your question, Subhashta, the point is that we have seen in the case of TikTok as well of late that suddenly when the TikTok was banned by the government of India, then all these woke liberals and the far left people started advocating for the TikTok, saying that it is anti-Dalit. It has harmed the subalterns in the country. It is harming the Muslims in this country because the Dalits were apparently using TikTok and all those things. I mean, this is the agenda. So to give legitimacy to their own ideological constructs and battles, they try to fire from the shoulders of the Dalit. And whether it's the CAA bill or NRC bill, these guys were opposing NRC, NPR, CAA in the name of the Dalits, saying that if NRC is implemented, Dalits will lose out. And Baba, why will the Dalits lose out? They stand to gain the most because of two reasons. Most of the refugees coming from Bangladesh and Pakistan are Dalits. Most of the people already in India who do not have the voting rights or citizenship cards or any documentation, they are Dalits, especially Bengal. If NRC is implemented, the Dalits stand to gain the most because you will become visible to the state. There will be a database, who is our citizen, who are these people who don't have any document, they will be given the documents. So the point is that this whole structure, which some people call victimhood Olympics. So the more victimized you are, the more legitimacy you have. So Dalits are at the bottom of the ladder, so everyone tries to fire their, guns from their shoulder, try to gain legitimacy. But this is very harmful for the Dalits because you drag them into the issues with which they have nothing to do otherwise, right? So you want to justify Chinese expansionism, you want to justify the anti-CA protest or anti-NRC protest, the religious bigoted protest in the name of the Dalits. That creates problems for the Dalits because other communities start seeing that, well,
दलित जो देश के दामाद हो गए हैं और दलितों के नाम पे सब कुछ होता है, इन्हीं को सब कुछ मिलता है, जबकि in reality they're not getting anything, right? So they're simply being used by this kind of narrative. So I think that's the main reason why they are dragged into all these kind of nonsense. गुरु प्रकाश जी, आप चूंकि बिहार में रह रहे हैं और आपका बीजेपी से एसोसिएशन काफी पुराना भी है, आपके पिताजी भी भाजपा में हैं, तो यू हैव अ वेरी रिच लेगेसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एज एन आउटसाइडर एंड ऑल्सो एज एन इनसाइडर। आउटसाइडर क्योंकि आपकी पढ़ाई दिल्ली, भोपाल इन जगहों पे हुई, तो आप कुछ दिनों के लिए बाहर भी थे, तो इट गिव्स यू द लग्जरी ऑफ हैविंग अ बैल्कनी व्यू एज वेल एज कमेंटिंग अबाउट थिंग्स एज दे हैपन इन द थिक ऑफ थिंग्स। बिहार लीडरशिप की, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, बाबू जगजीवन राम को इस तरीके से छोड़ देना, स्पेशली तब जब मुझे लगता है कि बिहार के शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे वो, और जिन्होंने बिहार का परचम बाकी, जैसा आपने बताया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लहराया। ये बिहारी लीडरशिप को इनसे इतनी क्या प्रॉब्लम है, या फिर क्यों नहीं सोच पाए इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए? निश्चित रूप से आई थिंक उस पर मैं आऊंगा, बट उससे पहले मैं आपका आधा मिनट का समय चाहता हूं। एक पत्र मेरे हाथ लगा है, एक चिट्ठी है जो बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहेब को लिखा था 9 मार्च 1937 को, और ये चिट्ठी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें उस समय के काउंसिल के चुनावों की बात हो रही है, और बाबूजी लिखते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें वेदना और पीड़ा भी मुझे दिख रही है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आप कांग्रेस से हमारे समझौते से दुखी हैं। मैं मानता हूं कि हमने कांग्रेस के साथ एक समझौता किया है, और इस समझौते का परिणाम स्वरूप संघ के 9 लोग कामयाब भी हुए हैं। ये दलित वर्ग संघ की बात कर रहे हैं। उन्होंने संघ के संकल्प पर और कुछ आरक्षण के साथ कांग्रेस के संकल्प पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वो कहते हैं, शायद आप जानते हैं कि यहां बिहार में कांग्रेस के सिवा कोई अन्य संगठित पार्टी नहीं है। स्थानीय स्वशासन मंत्री सर गणेश दत्त सिंह अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनका संगठन खड़ा नहीं हो सका। तो कांग्रेस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इट। वी मस्ट रियलाइज दैट कांग्रेस का एक अपना इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर था, जो कि आज भी मौजूद है कई जिलों में। मतलब लेट्स जस्ट फेस इट, बिकॉज कांग्रेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। तो उस इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, उस अम्ब्रेला के तहत लोग आते थे और लोग जुड़ते थे। और कांग्रेस जो कहती है कि भाई हम दलितों के जो कस्टोडियन बना दिया उन्होंने पेट्रनाइज करके रखा है एसेंशियली। आप ये बताइए ना कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने दलितों को निर्णायक स्थानों पर रखा गया, नहीं बता पाएंगे आप। और एट द सेम टाइम, अब भाजपा से सहानुभूति का मेरा दूसरा कारण है, बट एज अ फेंस सिटर भी अगर हम लोग देखें तो किसी भी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बंगारू लक्ष्मण दलित समाज से आते थे, किसने बनाया उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमार नहीं थी। मीरा कुमार नहीं थी पहली दलित स्पीकर, जीएमसी बालयोगी थे। और जीएमसी बालयोगी तब बनते हैं जब अटल जी प्रधानमंत्री होते हैं और टीडीपी के साथ उनका आंध्र प्रदेश में गठबंधन होता है। पहला राष्ट्रपति, के.आर. नारायण लोग बोलते हैं दलित क्रिश्चियन है, उनके ओरिजिन को लेकर के कंफ्यूजन है। पहला राष्ट्रपति कौन होता है? आज भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ एमपीज एंड एमएलएज आर फ्रॉम द बीजेपी। तो एक तो ये दलित नैरेटिव तुरंत से कैप्चर कर लेना, ये इसका मैं विरोध करता हूं। और जिस इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम की बात हम लोग यहां कर रहे हैं, और इनकी चर्चा स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है। अभी 2 दिन पहले ही मैं ट्विटर पे देख रहा था कि पतंजलि का जो कोरोनिल वाला विषय आया था, उस पर लोग उपहास कर रहे थे। चलिए, सबका अपना ओपिनियन होता है, लेकिन ये वही लोग उपहास कर रहे थे जो दलितों का झंडा उठाते हैं, बहुजनवाद का झंडा उठाते हैं। और तब इनका बहुजनवाद कहां चला जाता है? जब यादव समाज का व्यक्ति पतंजलि को खड़ा करता है। तो बाबा रामदेव सवर्ण समाज से आते हैं क्या? बाबा रामदेव ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं क्या? बाबा रामदेव भी यादव हैं, लेकिन इनका जो सिलेक्टिव दलितिज्म है, इनका जो सिलेक्टिव बहुजनवाद है, इससे मुझे समस्या है। इसकी बात हमें करनी होगी, और ये आज कोई करने को तैयार नहीं है। आपने पूछा बिहार में आखिर क्या हो गया है। सुभाष जी, थोड़ा मतलब पीछे जाना चाहिए हम लोगों को। बिहार में दलित पॉलिटिक्स का अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। हालांकि हमारे यहाँ 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई एडमिट दैट दे वर नॉट मोर देन द प्लेस होल्डर्स। और कांग्रेस नहीं बनाया। भोला पासवान शास्त्री 70 के दशक में रहे, राम सुंदर दास 90 के दशक में रहे। बट अभी भी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में
दलित चेतना और दलित राजनीति का विकास हुआ है, बिहार में अभी वो होना बचा हुआ है। रामविलास पासवान जी के रूप में एक महत्वपूर्ण विकल्प है। रामविलास पासवान जी के पास इतिहास में कई ऐसे मौके भी रहे जब वो नेशनल लीडरशिप में इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन कर सकते थे, बट समहाउ पॉलिटिकल कारण होते हैं, उस कारण वो नहीं कर पाए। अभी आपसे बात करते करते मैंने तेजस्वी यादव का एक ट्वीट देखा, शायद उनको किसी ने याद दिला दिया कि बाबू जगजीवन राम का आज पुण्य स्मृति है और हमें ट्वीट करना चाहिए। या शायद मत कहिए, हाँ। ये जो आरजेडी के जितने ट्रोल हैंडल्स हैं उन्होंने मुझे पिन करके रखा हुआ है अपने उस पे। यही वीडियो देख करके उन्होंने ट्वीट कर दिया क्या? हो सकता है वीडियो देख के किया हो, या फिर मैंने ट्विटर पे तो कह ही दिया है ये चीज। और ये लोग तो मतलब ट्रोल आर्मी की तरह गाली गलौज सबके साथ बात करते हैं। आजकल मैंने गालियों वाले पूरे उस समूह को ही ब्लॉक किया हुआ है, इसीलिए वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो गुड दैट ही ट्वीटेड, ट्वीट के अलावा भी कुछ कर देते। नहीं, चलिए आप अपनी बात एग्जैक्टली। वो बिहार में अभी भी मेरा मानना है कि एक मैच्योर दलित पॉलिटिक्स का आना अभी बचा हुआ है। मांझी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, मुख्य धारा दलों में भी दलित चेहरे हैं, बट एक प्रॉपर दलित थॉट, एक रोबस्ट दलित चिंतन जिसका विकास उत्तर प्रदेश में हो गया है। और अब तो मेरे ख्याल से वो विनाश की भी ओर है, क्योंकि मायावती फेल्ड टू कल्टिवेट एनी सेकंड जनरेशन लीडरशिप इन अ पार्टी। वी गिव हर क्रेडिट, बट a lot harm has also been done to the Dalit movement by the BSP and the Mayawati as well. So I think on this 34th death anniversary, apart from remembering the legacy of Babu Jagjeevan Ram, we must also have a fresh dialogue and a conversation on what is the new Dalit agenda, what is the way forward, who is going to dominate the Dalit narrative, what are the nitty-gritties of this narrative, who are the forces, what are the forces. आज मैं मनु जोसेफ का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई दलितों से भी ज्यादा बुरी स्थिति मुसलमानों की है। ये क्या आर्गुमेंट है, मुझे समझ में नहीं आता है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मनमोहन सिंह का ये रिकॉर्डेड भाषण है, इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे आप तय करेंगे क्या, किस आधार पे तय होगा? ये एक ऐसा वर्ग जिन्होंने शासन किया है, बिल्कुल मुगलों का शासन रहा, उससे पहले गुलाम वंश रहा 1100-1200 ईस्वी में, अभिनव बता पाएंगे अधिक उसमें, और एक ऐसा वर्ग जो कि विक्टिम रहा है। अब विक्टिम और विक्टर को जोड़ने का क्या काल्पनिक आप ये खाली पुलाव पका रहे हैं भाई? और गुरु प्रकाश जी, इसके लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है इतिहास में भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो सीए के आंदोलन हुए, उसमें जो आधिकारिक रूप से पोस्टर्स जो इस्लामिक जमात ने लगा करके जो आंदोलन किए, यही शब्द थे कि हमने तो कभी हिंदुस्तान पे राज किया था। ये वो आपने सही किया कि मुझे याद दिलवाया, क्योंकि इस बार का जो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि इस बार जो चर्न पे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें मैंने मनु जोसेफ को ही बुलाया है और हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है, एडिटिंग का काम चल रहा है उस पे। ये आर्टिकल अगर पहले आ गया होता तो ये सवाल मुझे जोड़ना था उसमें, बट आई विल डेफिनेटली आस्क हिम कि ये कौन सा लॉजिक है, व्हाट लॉजिक डज ही हैव इन गिविंग दैट काइंड ऑफ ओपिनियन। अभिनव जी, जो बात जहां से गुरु प्रकाश जी ने बात खत्म की, मुझे लगता है आप वहां से बात करते हुए ये बताइए, जो मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन की बात हमेशा की जाती है, उस कॉम्बिनेशन पर आपका क्या कहना है? प्लीज गिव अस, एनलाइटन अस विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और एक राइडर मैं पहले ही दे दूं दोनों को कि मैं जब बीच में स्क्रॉल कर रही हूं तो मैं कमेंट्स देख रही हूं, नॉट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अमेजिंग स्पीकर्स। आपकी आज्ञा हो तो रसोई तो जामुन खा ले, जामुन रखा हुआ हमसे रहा नहीं जा रहा है। बिल्कुल खाइए पीजिए। किसी की चाय रखी हुई थी, अभिनव जी ने चाय पीनी बंद कर दी। मैं तो व्रत पे हूँ तो मैं नहीं खा रही हूँ कुछ भी। देखिए, जहां तक ये दलित मुस्लिम एकता की जो बात हो रही है, पहली बात तो मुस्लिम एक रिलीजियस कैटेगरी है और दलित एक सोशल कैटेगरी है। सो आप जो बात करते हैं दलित और मुस्लिम, उसका क्या मेल है मुझको समझ में नहीं आया। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, अ रिलीजियस कम्युनिटी एंड अ सोशल कम्युनिटी। अगर आप पसमंदा की भी बात करते हैं कि पसमंदा दलितों का कुछ अलायंस है या उनके कुछ साझा इंटरेस्ट हैं, तो भी बात कुछ समझ में आती है। लेकिन जो मुस्लिम जो डिस्कोर्स भारत में चलता है, ये भी मत भूलिए कि वो सिर्फ अशरफों का डिस्कोर्स चलता है, वो सिर्फ सैयद पठानों का डिस्कोर्स चलता है, वो कभी भी जुलाहे का डिस्कोर्स नहीं चलता है, वो कभी भी वन गुजर का डिस्कोर्स नहीं चलता है, वो कभी भी उन मुसलमानों का, खासतौर पे बिहार पे जो ओबीसी कैटेगरी के कास्ट के आते हैं, उनका डिस्कोर्स नहीं चलता है। आप बिहार में भी देखिए, यूपी में भी देखिए, जो ओबीसी कैटेगरी के जो मुसलमान होते हैं, उनके घर में आज भी जो है, जो उनकी माँ होंगी, दादियाँ होंगी, सब साड़ी पहनती हैं। और जो अशरफों के ग्रुप है, जैसे तबलीगी जमात हो गए या इनके जो रिलीजियस मूवमेंट है, मुसलमानों एक हो, वो उनके पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं, बिकॉज दे वांट
all the traces of Hindu past to be removed completely from the Muslim communities. Now, if they're so intolerant that they cannot tolerate the cultures and the traditions of the Muslims in India who are not upper caste Muslims, who are the OBCs or the Pasmanda, what tolerance will they have for the Dalits and their cultures and traditions? This is the first question which needs to be asked. And we have seen this thing time and again. Before the independence, you have these alliance of the Dalits and Muslims in Bengal, and it ended up in genocide of the Dalits. Millions of Dalits massacred by the Muslims, by the Islamists. No one saved them. No Dalits remained in the Pakistan except those who were forcibly stopped from leaving the Pakistan, Western Pakistan. Otherwise, who is going to do the menial jobs in the Pakistan? Where is the Dalit Muslim alliance? I don't see. Most of the Dalits in Pakistan who are most of the Hindus in Pakistan are basically the Dalits in the lower caste. Lots of them were forced to convert to Christianity to escape the persecution, and those who remain, we know what's happening. Every day we get the news of girls and being kidnapped, all kind of atrocities being happening. So first of all, on a theoretical level itself, there is no basis of Dalit Muslim alliance. You cannot have alliance between a religious community and a social community. Second, historically, what is the agenda? I mean, Muslims ruled this country for centuries. There's no doubt about it. What did they do for the Dalits? Did they took a stand against the caste system? Did they eradicated untouchability? Nothing. They did nothing. I mean, Republic of India is the first state in the thousands of years of Indian subcontinent to take a clear and unambiguous stance against the caste system. It's the Republic of India which emancipated the Dalits finally. No other state in the past, no other state, no Mughal, no Turk, nobody, or even the British, they did not do that. So first of all, theoretically it's a wrong thing. Factually, historically is the wrong thing. And on the ground today, it's also not visible because you see lots of atrocities which happen against the Dalits are also done by them. I don't know this Manu Joseph kind of argument. This is not a new argument. This is an old argument. How can you say that a Muslim, let's say in the Western UP, a Muslim, let's say a Pathan, a Rohilla, is worse off than the Dalits living there? When it's the Dalit who is living in fear, whose land is getting captured, whose daughters are being harassed by the goons and other who belong to the dominant Muslim community. भाई भारत में जो dominant community होती है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी करता है. वो पुलिस जहाँ पे जो community dominant है वहाँ ना पुलिस पूछती है, ना कोई प्रशासन काम करता है, वहाँ पे उनकी criminals का भी कुछ नहीं होता. ये हमारे समाज का सच है. So I don't see this thing going anywhere except that they want to recruit Dalits as a foot soldier in order to wage a war against the Indian state, and which should never be allowed. Other point, the Dalits revere the Dr. Sahib Ambedkar, right? What is the opinion of the Muslim politics of Ambedkar? Ambedkar was a staunchly anti-religious person. He was staunchly anti-Islam as well. He saw no role for the religious laws in the working of a modern India. So is the Muslim side willing to abandon Sharia and all those things? And let's have a secular constitutional law for the personal laws as well? Because if you want Dalit Muslim alliance, there has to be some convergence, right? So are you willing to accept Ambedkar? Are you willing to follow the path shown by Dr. Ambedkar? Are you willing to convert to Buddhism and follow Buddhism? If not, then do your own politics. I don't have a problem with Muslims then doing their Muslim politics. Don't drag the Dalits into it. As simple as that. और मैं यहाँ पर व्यूअर्स को कहूंगी कि थोड़ा सा रिसर्च आप लोग स्वयं भी करिए. अंबेडकर जी के जो व्यूज हैं इस्लाम पे बहुत आसानी से आपको सिंपल गूगल सर्च से आपको मिलेगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे अंबेडकर जी की किताबें हैं. उन किताबों को पढ़िए एंड यू विल गेट टू नो कि कांग्रेस हो या कांग्रेस प्लस का जो अलायंस हो, जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर जी की लेगेसी को अप्रोप्रिएट करके एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, वो सारी की सारी चीजें धाराशायी हो जाती है. मैं कुछ सवाल लेना चाहती हूँ, कुछ कमेंट्स भी आए हैं लोगों के. एक सवाल आ रहा था, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कि लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं हिस्ट्री क्रिएशन के लिए, चाहे वो अच्छी हिस्ट्री हो या खराब हिस्ट्री हो. तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बात पूछी जा रही है कि क्या हम जैसे लोग जो कभी हमारे जो पुरखे रहे उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जो प्रोटेस्ट आज हम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से. दूसरी चीज पूछी जा रही है कि 1947 से लेकर के आज तक दलित
दलितों की जो अवस्था थी उसमें क्या सुधार हुए, और क्या ऐसा मान लिया जाए कि जस्ट बिकॉज समबडी इज फ्रॉम अ डिप्रेस्ड क्लास उसको हमेशा वरीयता मिलती रहे। मतलब मुझे लगता है आरक्षण का सीधा सीधा सवाल है, जो कि कभी भी आप दलित नैरेटिव की बात करें बिना आरक्षण के वो बात नहीं होती है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि कर्नाटका को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 बार से वो चुन करके आ रहे हैं, क्या उन्हीं वही विल ही बी द ओनली दलित फेस? तो ये तीनों क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि कंबाइन करके दोनों में से जिसकी इच्छा हो आप बात कर सकते हैं। मैं पहले बोल दूं? बोलिए। नहीं, देखिए, जैसे कि आपने कहा कि दलित नैरेटिव में जो रिजर्वेशन का इशू है उसको डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं, और काफी हद तक ये बात सही भी है। बट हम लोगों को ये समझना होगा कि रिजर्वेशन वाज नेवर एनविजन्ड एज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। आरक्षण को कभी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तरह नहीं देखा गया था कि उनको मिल गया, उस पीढ़ी तक मिल गया, पैसा मिल गया, सम्मान मिल गया, ऐसा नहीं था। So we need to clear this concept in our heads. Reservation was meant for representation, reservation was meant for dignity. और अभी भी जैसा कहा कि भाई एक ही परिवार लाभ ले रहा है, बाकी शेष वर्ग वंचित हो रहा है। I think I agree with the observation made by one of the member of the audiences, but I have two riders. Whenever you talk of reforms in reservation, point number one, the voice of reform must come from within the community. जब भी आरक्षण में सुधार की बात हो तो आरक्षण में सुधार करना है तो विद इन द कम्युनिटी ऐसी आवाज आनी चाहिए। और विद इन द कम्युनिटी आज बहुत सारे लोग ऐसे सबल हैं जो कि अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। अगर शेष समाज से बात आएगी कि आरक्षण में रिफॉर्म्स करना है तो वो शायद अस्वीकार्य होगा। दूसरा पॉइंट, जैसा आपने कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेस की स्थिति 47 से लेकर आज तक का क्या है, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा गवर्नमेंट से भी that the government should come out with a white paper on reservation. एक श्वेत पत्र सरकार को निकालना चाहिए कि फलाने फलाने समाज में, फलाने फलाने जाति में, फलाने वाले परिवार ने 3 पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ ले लिया है। क्या आरक्षण का लाभ चौथी पीढ़ी को भी मिलना चाहिए, या पासवान समाज में भी गुरु प्रकाश के परिवार को ही मिलते रहना चाहिए, जिसके पिताजी आरक्षण से प्रोफेसर बने, केंद्रीय मंत्री बने, गुरु प्रकाश खुद प्रोफेसर है। जो पासवान समाज में गरीब वंचित लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हमारे समाज के बड़े नेता हैं, खुद सांसद, पुत्र सांसद, भतीजा सांसद, भाई सांसद, अरे मी फर्स्ट, ओनली मी, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम द सेक्टर्स विच आर स्टिल अनरिप्रेजेंटेड, एंड देयर आर मेनी सच सेक्टर्स। आप देख लीजिए मीडिया में कितने दलित फेसेस हैं। यू आर इन कांस्टेंट टच विद द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड द सोशल मीडिया एज वेल। हाउ मेनी इंपॉर्टेंट वॉइसेस दैट मैटर्स दे कम फ्रॉम द सबार्डिन कम्युनिटी? Zero. I'll be very candid with you. 2006 की एक स्टडी है, बीसी उनियाल साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट रहे पायनियर में, उन्होंने बोला है 95.6% एडिटोरियल पोजीशन पे जो लोग थे वो एक ही जाति। बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगा। तो ये स्थिति है हायर जुडिशरी में, जो यूजुअली बड़ा आक्रामक रहता है कि आरक्षण में रिफॉर्म करिए, एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करिए। आज तक कितने दलित रहे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? एक, शुभ्रष्टा जी, एक। 70 साल में आपको एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। और कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक भी व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना है, जो कि सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी का पट्टा पोजीशन होता है। एक भी व्यक्ति फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बना है। अभिनव बता पाएंगे कितने प्रोफेसर वाइस चांसलर दलित समाज से? आज भी 70 साल बाद मैं बात कर रहा हूं, आरक्षण खत्म करो, आरक्षण डाइल्यूट करो। अरे आरक्षण पे रिफॉर्म्स का कॉन्वर्सेशन करने को तैयार है। समाज की विदिन ये बात हो, आप व्हाइट पेपर लेके आइए, और उन सभी क्षेत्रों में जहां प्रतिनिधित्व नहीं है वहां पे प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपका क्या रोड मैप है? आई थिंक बिकॉज दलित नैरेटिव को आप आरक्षण से जुड़ा नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, सो आई थिंक वी बिकम पैशनेट, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम लॉजिकल आर्गुमेंट्स, द लॉजिकल डिबेट, एंड वी आर रेडी टू हैव अ डिबेट, बट दी समाज शुड हैव अ, बिकॉज देयर आर स्टेक होल्डर। आप उनके बिना संभव, ये कैसे संभव है कि उनके बिना आप आरक्षण का भविष्य तय कर देंगे? नीति निर्धारण में उनकी I completely agree with you. There is no doubt कि आपने जो बोला, और ये मुझे लगता है गुरु प्रकाश जी जितने पैशन से आपने बोला है उतने पैशन से ही आवाजें फ्रॉम विद इन द दलित कम्युनिटी आनी चाहिए, और पैशन जरूरत हो तो उस पैशन के वॉल्यूम को और बढ़ाने की भी जरूरत है। जहां जहां पर ये मीडिया वाली जो बात आपने की, गुरु प्रकाश अभिनव प्रकाश जी, अगर आपको कुछ ऐड करना हो इसमें तो कहिए, नहीं तो मैं दूसरे सवाल के साथ
आपसे पूछूंगी। नहीं, मैं इसमें बोलता हूँ। देखिए, जब रिजर्वेशन की बात हो रही है, सो रिमेंबर इंडियन सोसाइटी आज भी फंडामेंटली कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, एंड अ कास्ट सोसाइटी इज नेवर अ मेरिटोरियस सोसाइटी। Merit and caste system do not go together, right? So if you are saying that reservation is today is bad, then you have to see that caste-based society also means permanent reservation. What was the caste system? That you are born into this family. Suppose you are born into a Brahmin family, you are supposed to do that job. Brahmin में भी उसका सब डिवीजन है कि आप ये वेद पढ़ेंगे, आपका ये काम है, आपका वो काम है. आप कुम्हार हैं तो भी आपका वो काम है. So why, when people do not have problem with the caste system, which itself is a system of reservation, and you say the caste system was a genius indigenous economic structure which propelled India to great heights, how can you oppose reservation? Right? Just because that now you see with your own eyes that the lower subalterns are benefiting, so suddenly you have a problem with the reservation. Second point is that, see, this whole thing of removing the people from the reserve category is problematic. And I wrote it on Twitter some day back that even in the OBC category, there should not be any creamy layer concept. Remember, you want to ensure representation, as Guru said. It's not poverty elevation program. And then you also want to maintain the merit. Now, it's a very harsh fact that the merit is intergenerational, right? That your intergenerational prosperity exposure determines your merit. Now, in the general category, let's say, or let's not general category, unreserved category. Suppose someone is a 3-generation, has a social, cultural, educational capital of 3 generation, and you want to impose creamy layer in the SC category. What is going to happen? The cutoff marks for the general category will remain very high. But for the, let's say for the SC category, if you remove the creamy layer, or in the OBC category, the cutoff marks will have to go down. And then you will come back and say, देखो ये तो unjustified है, cutoff marks इतना लो जा रहा है, तो reservation is anti-merit, let's remove it. So it's a circular argument. So I do not believe that there should be any creamy layer criteria in any category. Right? Why? Because you can evolve the mechanism, like you can evolve a mechanism of a social deprivation point. You can say that the person who are coming from the rich family and the availability of the seats are inversely proportionate, but never ever remove anyone, right, from this thing. Because this is the problem we see everywhere. Sometimes it becomes difficult to fill certain seats which are highly specialized. Because first generation person, people don't go into this. So I think there's enough to talk about reservation. We can talk about it. But coming to the judiciary point, one quick point, Subhashta. See, देखो जुडिशरी हर बात रिजर्वेशन में जब भी होता है केस तो तुरंत चुन लेती है, तुरंत स्टे लगा देती है, तुरंत बहुत एग्रेसिव रुख अपनाती है. आज तक इन्होंने ईडब्ल्यूएस पे कोई सुनवाई नहीं की, जबकि बहुत सारे केस पेंडिंग है. ये क्या दिखाता है आपका? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिखाया आपने. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बेसिकली अपर कास्ट रिजर्वेशन है, क्योंकि अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं कर सकते हैं. कोई यादव उसकी अगर इनकम कम है तो वो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं कर सकता. बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आपको फिर ओबीसी में जाना पड़ेगा. इनकम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उसमें जाएंगे. तो पॉइंट ये है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनल क्लासिफिकेशन. जो लोग पूछ रहे हैं, जिन्होंने केस किया है, और बहुत सारे अपर कास्ट के लोग भी, उन्होंने भी केस किया है. देयर आर सम प्रिंसिपल पीपल हु आर अपोज्ड टू एनी फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, राइट? दे आर नॉट हिपोक्रेट्स. सो उनका है कि व्हाट इज द रीजनेबल क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड देन इज दिस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज अ कम्युनिटी डज इट फेस सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, or is it underrepresented? Because this is the question you ask in the case of SC and OBC. So why is judiciary not taking the lead and listening to this case and asking the same questions from the government? So it shows that representation matters. Had in judiciary you have a different social composition, perhaps people have not been so anti-reservation or anti any rule which benefits the subalterns in the sense. So I think this is a complex problem. This is how the social power functions. This is how the polity function, which itself is dependent a lot on your wider polity. So I think in a brief, I wanted to add this point. So I think both of you have really elaborated on a concern जिस पे मुझे लगता है इतनी ही क्लैरिटी के साथ जो भी बिलीव करते हैं ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात में या फिर रिजर्वेशन के पुनर्विचार की जो बात होती है, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत ही क्लैरिटी से एक बात रखी है. अभिनव जी, दिस इज नॉट अ काउंटर टू व्हाट यू सेड, दिस इज जस्ट एन एडिशन. जो आपने कर्म प्रधान वाली बात जो की, कर्म और जाति को, मुझे लगता है कि जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं आजकल पढ़ रही हूँ पुराने जो टेक्स्ट हैं उनको, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कहीं ना कहीं
we committed a mistake as a community. We committed a grave mistake of putting hierarchies in the kind of work that people did. उसी का नतीजा आज ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कुम्हार समाज का काम ब्राह्मण समाज के काम से कमतर था. ये चीज शायद अब हम ऐसा सिचुएशन हो गया कि हमने ये देखना शुरू किया कि जो अगर जूते बना रहा है समहाउ वो व्यक्ति शायद गलत काम कर रहा हो. जो और मुझे लगता है गुरु प्रकाश जी के साथ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में कई बार ये बात हुई है. आधुनिक भारत में मुझे लगता है ब्राह्मण कैटेगरी में आप लोगों को आना चाहिए. यू गाइज आर द रियल ब्राह्मण, क्योंकि रोज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं. इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मतलब जस्ट बिकॉज एक कम्युनिटी ने, जो ब्राह्मण जाति, जिस जाति प्रथा जिस तरीके से जन्म से जाति जिसको हमने मानना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज आई एम बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मैं ब्राह्मण फैमिली में ही कंटिन्यू विद दैट लेगेसी विदाउट डूइंग व्हाट ब्राह्मण्स वर सपोज्ड टू डू. तो this is my interpretation of how things are, and I really want कि जिस आपने जो बात की EWS कैटेगरी की, मुझे लगता है कहीं शर्म है ओबीसी शब्द के साथ, दलित शब्द के साथ, एक स्पेशली फॉरवर्ड कम्युनिटी जिसको कहते हैं, उस कम्युनिटी में जो शर्म अटैच्ड है इनके साथ, वो शर्म क्यों अटैच्ड है? अगर आपको लगता है कि आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप अपने आप को सवर्ण में क्यों कैटेगरी आप गिनना चाह रहे हैं? आप कहिए ना कि दलित समाज में भी एक कैटेगरी बना दीजिए कि आप इकोनॉमिकली इफ यू आर नॉट इकोनॉमिकली एज वेल ऑफ, आपको अपने आप को दलित कहलाने में क्या दिक्कत है उसमें? गुरु प्रकाश जी, anybody who would want to comment on that, because I can हमसे रहा नहीं जा रहा है अब. बोलिए. नहीं, देखिए ऐसा है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर के मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है. आज से पहले अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे हम लोगों पे स्टिग्मा लगाया जाता था, ये आक्रमण किया जाता था, अरे ये तो SC ST वाले, अरे ये तो आरक्षण से आ जाएंगे. अरे भाई, अब तो आरक्षण से कोई वंचित ही नहीं रहा, अब तो तुम भी आरक्षण से आ रहे हो. तो जो आरक्षण का इतना बड़ा स्टिग्मा था, वो स्टिग्मा खत्म हो गया. आरक्षण को डिस्टिग्मेटाइज करने का काम इस माध्यम से किया गया है, एंड दिस मूव इज गोइंग टू हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस. दूसरा जो आप लोगों की बातें में सुन रहा था, कर्म प्रधान वाली बात, मैं अपने पिताजी के विचारों से काफी प्रभावित रहता हूं, और वो कहते हैं अक्सर कि आधुनिक भारत में सबसे बड़ा चमार बाटा, सबसे बड़ा लुहार टाटा. तो आज जो है वर्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऐसा कोई रही नहीं गया है. और जैसा कि आपने कहा, हम लोग प्रोफेसरी में है, अभिनव जी प्रोफेसरी में है, तो कर्म प्रधान के हिसाब से हम लोगों का क्या प्रोफेशन होगा ये जग जाहिर है. बट इसके बावजूद, और आप देखिए, और नुआंसेस को हम लोग मिस कर देते हैं. जब दलित मुस्लिम अलायंस की बात होती है, वी मस्ट रियलाइज दैट देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट. मैं आजकल बहुत सारे लोगों के संपर्क में हूं जो कि झटका मूवमेंट चला रहे हैं. आप विदेश जाते हैं, आपने देखा होगा न्यूयॉर्क में भी जो कार्ट्स पे रहते हैं, वो कार्ट्स वाला भी लिखता है कि आवर मीट इज हलाल सर्टिफाइड. अरे ये हलाल सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा इकोनॉमी, एक बहुत बड़ा गैंग है. और खटिक समाज के लोग, मूलतः दलित समाज के लोग, कसाई समाज के लोग, जो कि झटका मीट के व्यापार में वर्षों से थे, उनको आपने उनके पेशे से वंचित कर दिया. आपने एम्बैरेस किया. जूते का काम, मांस काटने का काम, बाल काटने का काम, दर्जी का काम, पंचर बनाने का काम, ये सब काम कौन करता था? जो भ्रष्टाचारी. और वर्तमान में देख लीजिए आप, मांस का काम कौन कर रहा है, दर्जी का काम कौन कर रहा है, पंचर बनाने का काम कौन कर रहा है. तो किसी प्रकार से इकोनॉमिकली आप मार्जिनलाइज करिए, फिर नैरेटिव जो बिल्डर्स आपके दिल्ली में बैठे हुए हैं या जगह जगह बैठे हुए हैं, वो नैरेटिव कैप्चर करते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ गुरु प्रकाश जी इसमें, कि जिस तरीके से और मैं ये बात बहुत गंभीरता से और बहुत सीरियसली ऐड कर रही हूँ कि आज जो भी हम लोग रेवोल्यूशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस, रेवोल्यूशन शब्द गलत है, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, भारत जिस तरीके से बदल रहा है, इसका मैं श्रेय बहुत बड़ा देना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर को, जो कि खुद एक ऐसी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं. उनके रहते हुए एक दलित प्रेसिडेंट अभी है हमारे देश में, और उन्हीं लोगों के, मुझे लगता है इस टाइप के जिस तरीके का उन लोगों ने देखा होगा ग्राउंड पे, या जिस तरीके के अनुभव उनके रहे होंगे पर्सनल, उसकी वजह से मेक इन इंडिया को जिस तरीके से लॉन्च किया गया, और जो ओरिजिनल विजन था मेक इन इंडिया का, वो यही बात थी जो आप कह रहे हैं. पारंपरिक रूप से
जो काम लोगों के पास थे, अगर हमने जुलाहे वर्ग को, अगर हमने जो भी नाम आपने लिए, कुम्हार कम्युनिटी को, चमार कम्युनिटी को, मुझे पता नहीं कि SC/ST एक्ट के तहत मुझे भी बुक किया जाएगा या नहीं, बट जो कम्युनिटीज है मैं बहुत सम्मान पूर्वक नाम लेना चाहती हूँ इन सारे कम्युनिटीज का, और उसी सम्मान से मैं ले रही हूँ नाम। इन कम्युनिटीज के काम को अगर मेक इन इंडिया से जोड़ते हुए वो सारे ग्रुप्स काम कर रहे होते जो अपने आप को दलितों के बहुत बड़े पुरोधा बताते हैं, तो मुझे लगता है ये जो जिस विजन से प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया था वो किसी दूसरे स्तर पे होता। अभिनव जी सॉरी, आई थिंक आप कुछ कहना चाहते थे और मैंने बीच में आई इंटरवीन। नहीं, not at all. But see, this whole idea of, as you were saying, that we did a mistake in the past to bring hierarchy now, and I don't really buy that kind of view, because that basically assumes that there was some original system, right? But the fact of the matter is that we don't even know when did the caste system originate and from where in the history. We have no idea. Was it after the Vedic period? Was it before the Vedic period? Because some people have see, what is the caste system? This is the stratification of the society, which assumes that the society has become very complex in terms of material production. That you have cities, that you have different kinds of professions. You can't have that in a nomadic or semi-nomadic society. So some people have argued perhaps it was already in existence or had already evolved under the Harappan cities itself, that you have the different kinds of profession and the stratification. So the point is that we don't even know when did it originate. So to argue that we had some original pure caste system or Jati Varna system, because this is a combination of both Varna and the Jati, the system we see today, and somehow that got distorted in the way, I don't buy that thing. I think there was no such thing, and this is simply how the society has evolved. So this is the whole question of path dependency. That something happened and then we have continued on those kind of lines. The point is that in the today's world, and this kind of stratification have existed in almost all the societies, in the Western society, in the Japanese society, and so, because it's only after the rise of industrialization and the rise of capitalism that you have the breakdown of the birth-based system. Remember, wherever the capitalism becomes stronger, it destroys the birth-based system, because it destroys all value except that what is the market value. Right? So this has happened in every part of the world. And this is happening in India. So Guruji कह रहे थे कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स मैच्योर क्यों नहीं हुई आज तक, वो हो भी नहीं सकती, और यूपी में क्यों हुई उसका कारण क्योंकि the Agra belt, the western UP, was among the first places in India which came into contact with the modern capitalist economy under the British rule. Bombay, Madras, Kolkata, the Bengal region, and it was the western UP. And you see, these were the areas which first came into contact with the modern economic structure. And this is where the anti-caste movement and Dalit movement rose up. Bengal has a rich legacy of Dalit movements. People don't talk about it. Somehow it has been subdued, neutralized under the communist rule, but it was a very strong movement. So the Western UP में तो अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गया था breakdown of the Jasmani system, breakdown of the bonded labor, breakdown of the the traditional occupation and the mobility of the labor, and that actually led to the emergence of the politics. So Bihar is still an agrarian state. वहां पे जब तक मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, शहर नहीं होंगे, तब तक बिहार में दलित राजनीति कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। आप गांव के आधार पे, गांव की राजनीति के आधार पे कभी नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग। सेकंड पॉइंट, हिस्टोरिकली यू सी, आपने बोला कि इतिहास में क्यों नहीं आवाज उठी है, बहुत आवाज उठी है, बहुत मूवमेंट्स चले हैं जाति के खिलाफ, और इसमें हर जाति के लोगों ने किया है, अपर कास्ट की भी किया है। आप देखिए बसावन्ना के मूवमेंट को देख लीजिए, आप रामानुजाचार्य के भी देखिए, सबने कहा है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन गलत है। दलितों में भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स रहे हैं, पूरी लिस्ट है। और जो कहता है कि इसके खिलाफ कभी विरोध का स्वर क्यों उठा, तो आई थिंक वो कोई और टाइप की हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेरे को नहीं पता है। लेकिन इसमें एक चीज देखना बहुत आवश्यक है सुभाष, जितने भी एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल्स रहे और जितने भी दलित संत या रिफॉर्मर्स रहे, सबने हमेशा शहर की परिकल्पना की है, किसी ने गांव की परिकल्पना नहीं की। चाहे वो रविदास हो, उनका बेगमपुरा हो, वो शहर, वो गांव नहीं है। कबीर की प्रेम नगरी, वो नगरी है, वो कभी गांव नहीं है। शहर जहां ग्रो करते हैं, जहां पे बहुत इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जाति व्यवस्था हमेशा कमजोर होती है। और इससे के कारण आप देखेंगे जो सोशल ऑर्थोडॉक्सी है वो शहरों के बहुत निंदा करती है। दे डोंट लाइक, दे ऑलवेज ग्लोरीफाई द विलेज। गांधी इज द प्राइम एग्जांपल।
They will always glorify Gram Swaraj and all those things. स्वदेशी वो स्वदेशी गांव और जो गांधी की परिकल्पना थी अभी, क्योंकि social orthodoxy is always stronger in the villages. And as you have the rise of the cities, the ideal जो आदर्श जातीय वर्ण समाज है वो टूटने लगता है, इधर उधर वर्ण संकट जातियां होने लगती हैं, प्रोफेशंस मिक्सअप होने लगते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है. So that is why unless and until we do rapid industrialization in Bihar and also in all of the part of the country and have an urban-based development model, we are not going to supersede or get out of this trap we found ourselves. अभिनव, आई कंप्लीटली एग्री. दो चीजों जो आपने बात की, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक अर्बनाइजेशन, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. कैपिटलिज्म, आई समहाउ अगेन हम मुझे लगता है आपस में हम लोग जब ऐसे भी बात करते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं गुरु प्रकाश जी की कैपिटलिज्म को लेकर के हमारा जो एक राइट विंग का जो एक झिझक है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, मे बी बिकॉज सामने से इतनी भयानक ऑपोजिशन आती है कि डर करके नेता 4 कदम पीछे होते हैं. वी हैव टू ओन अप टू द फैक्ट. जो बातें अभिनव जी ने कही वो बिल्कुल फैक्चुअल बात है. और डिकी के सूट की सरकार बनी है. बिल्कुल. डिकी के जो प्रेसिडेंट हैं, जिस तरीके से दलित समाज आज काम कर रहा है, जहां जहां उनके अपने हाथ में संसाधन आना शुरू हुए, अपने हाथ में पैसे आना शुरू हुए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाते हुए जो काम कर रहे हैं, इट itself is a very proven model for success. एक बस छोटा सा राइडर अभिनव प्रकाश जी मैं देना चाहती हूँ. आई थिंक इसके पहले भी कभी एक पैनल डिस्कशन में हम थे तो इस बात पे हमारी इस बात पे हम लोगों की चर्चा हुई थी. मैं कर्म प्रधान वाली बात पे मैं कहना चाहती हूँ, इतिहास में कब क्या हुआ, एक्चुअली एज अ मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न यंग इंडियन, आई विल वांट टू लुक एट हिस्ट्री इन अ सर्टेन वे. दैट्स अ डिफरेंट इशू. मैं आप जो कह रहे हैं मैं उससे अग्री कर रही हूँ. मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये रख रही हूँ, कब हुआ क्या हुआ शायद कभी हम नहीं जान पाएंगे, बिकॉज वी वर नॉट देयर एंड वी कैन ओनली रीराइट हिस्ट्री थ्रू व्हाटएवर इज अवेलेबल. लेकिन जो भी मैं लोक में जो समझ पाती हूँ, जो भी मैं एकदम जो पुराने गीतों से जो मुझे मिलता है, मुझे ये नहीं लगता कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन था. और समाज में देखती हूँ तो लगता है कि बहुत भयानक रूप से डिस्क्रिमिनेशन था. ये जो द्वैत आया, ये क्यों आया और कैसे आया, मुझे लगता है ये हमेशा एक जटिलता का विषय अब बना रहेगा. आज के जमाने में जैसा गुरु प्रकाश जी ने कहा कि टाटाज आर द न्यू लोहार्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड इन फैक्ट. और तो we have to actually accept it and accept it. ये हमें मत एट्रीब्यूट करिए, पिताजी का आइडिया है, डांट पड़ जाएगी फिर हमको. Committee is original thinking. I don't claim the ownership. But do you agree with it? I completely agree with it. Completely agree with it. His sense में कह रही हूँ. One thing, Shubhrashta ji, now that we are talking about the history, I'm not a scholar of history, but I raised this point in the Charvak podcast as well. Keep blaming entirely the colonial forces or the Islamic forces for the caste-based atrocities or the caste anomalies is wrong. Once they left, आपको आनंद आने लगा क्या उस स्ट्रक्चर में? बिल्कुल सही बात. एक बार आप कंप्लीटली एट्रीब्यूट कर देते हैं अंग्रेजों पे और मुगलों पे, नहीं जी वो आए और जातिवाद आ गया, नहीं जी वो आए और जात-पात की समस्या लेके आ गए, वो चले गए, तो आपको मजा आने लगा क्या इस हायरार्की में? आपको मजा आने लगा इस स्ट्रक्चर में? तो इससे अपने आप को एब्सॉल्व नहीं करना है. बाबू जगजीवन राम भी यही कहते हैं कि अगर हाथ में घाव हो गया तो हाथ काटना नहीं है, उस घाव को बनाना है, उस घाव पे मलहम लगाना है. घर में कोई समस्या है तो घर पे संवाद के माध्यम से उसका समाधान निकालना है, घर तोड़ना नहीं है. ये बेसिक सी बात है. और बाबू जगजीवन राम को इसलिए हम लोग स्मरण कर रहे हैं ना, उनका एक स्टेप है, इफ यू गिव मी 30 सेकेंड्स, उन्होंने रेल मंत्री. This is not a national television panel. You have all the time in the world to talk. आपको देख के प्राइम टाइम की याद आती है, क्या करें. बाबू जगजीवन राम जब रेलवे मंत्री थे, उन्होंने एक पानी पांडे नाम का पोजीशन क्रिएट किया. कितनी इंटरेस्टिंग इसकी एटिमोलॉजी है, देखिए आप. और पानी पांडे का काम क्या होता था? 70 की बात है ये. उस समय प्लेटफॉर्म पे वाटर कूलर और वाटर फिल्टर की व्यवस्था होती नहीं थी. एक व्यक्ति होता था जो सबको पानी पिलाता था, और पानी पांडे के हाथों से सभी जाति के लोगों को पानी पीना है. और पानी पांडे में कौन लोग थे? मैक्सिमम दलित समाज के लोग थे. तो एक तीर से कई निशाने कर दिए उन्होंने. नौकरी भी दे दी, और जो ब्राह्मण दलित के हाथ से पानी नहीं पीना चाहता था, दलित पानी भी पिला दिया. तो ऐसे थिंकिंग की जरूरत है. कंप्लीटली कैपिटलिज्म करना है कि नहीं करना है, इस पे मेरा कुछ संदेह है, क्योंकि 100% आई थिंक कैपिटलिज्म किल्स कास्ट
और मैं इनफैक्ट आई बीन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ डिक्की एज वेल, बट ऑन द ग्राउंड आई स्टिल थिंक अ लॉट हैज टू बी कवर्ड, अ लॉट हैज टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि दलित समाज, मैं आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, मैं जब विदेश गया पहली बार, या दिल्ली में मैं कभी एम्बेसीज में जाता था, तो जो शैंडलियर्स होते थे एम्बेसीज में, मैं देख के मेरा जी घबराता था। मैं आज ऑनलाइन आपके साथ बैठा हूं, एक अच्छा माहौल मिला है, तो मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज स्केयर्ड ऑफ द शैंडलियर, ये मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएगा। तो जब गुरु प्रकाश, जिसके पिताजी प्रोफेसर रहे, माताजी प्रोफेसर हैं, खुद उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी भावना, कुछ ऐसा डर है उसके मन में कि वो झालर उसके ऊपर साला गिर तो नहीं जाएगा। अगर मेरे मन में ऐसा खौफ है, तो एक आम दलित व्यक्ति वो बैंक में जाकर के स्टैंड अप इंडिया के लिए लोन कैसे अप्लाई करेगा? उसके मन में डर नहीं कि वो अपमानित कर दिया जाएगा किसी मैनेजर के हाथों, उसके मन में डर नहीं है कि उसका बैंक का जो कर्मचारी होगा उसको गाली देकर भगा देगा। गुरु प्रकाश जी, आप ये जो डर है, ये जो डर आपने, इसको, और मुझे नहीं लगता है कि शायद, आई एम सॉरी बट आप नहीं समझ पाएंगे, अभिनव मेरे इस बात से कहीं ना कहीं एग्री कर पाएंगे। नहीं, मैं उल्टी बात कह रही हूँ आपको। मैं कह रही हूँ कि आपका जो डर है झालर के साथ, वो डर, मैं I got the crux of your argument। मैं कह रही हूँ ये अर्बन रूरल डिवाइड की भी बात है। मैं आज तक कई सिचुएशंस में सहज नहीं हो पाती हूँ। जैसा आपने कहा, हम लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक इंस्टीट्यूशंस में हुई, लेकिन मैं आज भी कुछ सिचुएशंस में ओपन नहीं हो सकती, मैं खास करके पब्लिकली कभी भी ओपन नहीं हो सकती। ये डर और ये जो झिझक है, ये आपने हालांकि दलित कम्युनिटी की बात की, लेकिन ये क्लास डिवाइड है गुरु प्रकाश जी जिसकी बात आप कर रहे हैं। ये झालर वाला डर मेरे मन में भी शायद कहीं ना कहीं ये जरूर है। या झालर वाली बात छोड़ दीजिए, विदेशों में जाने के बाद रेस्टोरेंट्स में घुस करके ऑर्डर करना बहुत छोटी सी, बहुत आम सी बात लगती है। आज भी खान मार्केट के कैफेज में मैं उतनी सहज नहीं हूँ जितनी सहज रजत है। मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश शहरों में, मेरी परवरिश कानपुर या पटना में नहीं हुई, मेरी परवरिश ज्यादा से ज्यादा गाँव में हुई। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द अर्बन लाइफ, और ये कई बार दिखता है। और इसलिए आज मैं आई एम द बट ऑफ जोक्स अमंग माय प्रोफेसर्स आल्सो। मुझे तो पता चला डिपार्टमेंट में भी लोगों ने ये डिबेट शुरू किया। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये इंटरसेक्शनैलिटी की बात है। हालांकि आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, जो सामाजिक रूप से जो जोड़ने का आपने प्रयास किया, एकदम सही बात है। और इसलिए जो दो चीजें छूट गई थी हम लोगों के बातचीत में, मैं सिविल सर्विसेज का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है, दृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक है, वहां पे मैंने कुछ 2 साल मैंने वो जो पैनल बैठता है ना इंटरव्यू के लिए, उस पैनल में मुझे भी बुलाया गया था। और 90% of the Dalit students that I spoke with, aspirants that I spoke with, 90%, और मैंने ये बकायदा डेटा इकट्ठा करके मैं आपको बता रही हूँ, not even 95% से ऊपर था। एग्जैक्ट डेटा मैं कभी आप लोगों को मैसेज करूंगी। They all said that reservation should be पुनर्विचार वाली बात उन्होंने रखी। And they और मैं उन लोगों के अंदर ये जो स्पार्क देख रही थी, और एक मैं सिचुएशन इमेजिन कर रही थी कि अगर ये डीएम बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, एक बूढ़ी विधवा सवर्ण महिला अगर उनके ऑफिस में जाती है और इन लोगों के माध्यम से, यानी दलित समाज के इस आईएएस के माध्यम से अगर उसका पेंशन पारित हो जाता है, जिस गर्व के भाव से और जिस कृतज्ञता के भाव से वो पैर छुएगी कलेक्टर का और सर या शायद उनको गले लगाएगी, कितनी जातिगत वर्जनाएं टूटेंगी। लेकिन ये जो बात दलित कम्युनिटी के रिजर्वेशन की बात आती है, 100% अग्री विथ यू। ये जो 95% जिनकी बात हम कर रहे हैं, या आप जैसे लोग जो कि मुखरता से कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर की जो बात अभी हम लोगों ने की, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी। और यहाँ पे जितने भी लोग अगर कमेंट कर रहे हैं, मैंने बहुत देर से नहीं देखा है, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये बात आधिकारिक रूप से वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट। वी हैव नो लोकस स्टैंडी टू टॉक अबाउट दिस। Abhinav ji, sorry, I think you wanted to say something. No, not at all. ये जो गुरुजी ने बात की ना पानी पांडे वाली, इन्होंने बोला कि नाम रखा है पानी पांडे, उसमें सबको एम्प्लॉय कर दिया दलितों को। अब देखिए जो दलित डिस्कोर्स आज चलता है, जो हमारा रेडिकल जो दलित डिस्कोर्स है या जो वोक डिस्कोर्स है, उसमें उनको सिर्फ कंटेंट से कुछ मतलब नहीं होगा क्योंकि आपने पानी पांडे नाम रखा, वो इसी को लेके पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने पे लग जाएंगे। तो ये दिखाता है कि जो आजकल का जो डिस्कोर्स जो आप देखते हैं चीखने चिल्लाने वाला, डिस्कनेक्टेड है, कि आपको काम से मतलब नहीं है। और सिर्फ दलित का नहीं, मतलब पूरे वोक जो डिस्कोर्स चलता है आजकल सब में वही है कि रियल कंटेंट से मतलब नहीं है, क्या फायदा और उससे मतलब नहीं है, बस नाम क्यों रखा, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, आपने ये क्यों किया है, आपने वो क्यों नहीं किया है। That is true. The other point which I wanted to make, Sudhashta, is again a brief point.
See, reservation is, I mean, the people who hate the reservation most in this country, people don't realize, right? Apart from the usual anti-reservation people, they are the mobbists and the nationalists. The far left hates reservation a lot because, according to them, by giving reservations, the Indian state has bound the Dalits and the downtrodden with itself. So अभी क्या हो गया कि आपका इस व्यवस्था में स्टेक हो गया. So उनके अकॉर्डिंग कि बाय आरक्षण देके आपने फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट कर दी है, तो अब क्रांति होना मुश्किल हो गया है इस देश में. Very interesting. So if you are speaking against the reservation, keep the broader polity in mind as well. The reservation has stabilized Indian state. It has given legitimacy to the Indian state. And this is one of the reasons why anarchism, the kind of anarchism is seen in America, वो ब्लैक लाइफ मैटर साला चल रहा है, वो भारत में आप नहीं देखते हैं. दलित ऐसा नहीं करते बिकॉज सब कोई कोचिंग कर रहा है कुछ ना कुछ बन जाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि एक स्कोप है वहाँ पे सिलेक्शन होने का. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, ये जो बात कर रहे थे गुरुजी की ईडब्ल्यूएस दे के जो है क्या कहते हैं वो स्टिग्मा खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता है. आज भी मैं देखा था ट्रेंड कर रहा था एक उसमें पूरा एंटी रिजर्वेशन सब ट्रेंड कर रहा था. So I don't think so. So because people have here a problem with the reservation going to certain communities, they don't have a problem with reservation per se. Because had they had a problem with reservation, they would be an anti-caste system, because that's the most systematic form of reservation ever created, I will say. Second point is that they would also be speaking out against मैनेजमेंट कोटा, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ कोटा. हम तो कभी नहीं देखे कोई मैनेजमेंट कोटा से आता है उसके खिलाफ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कभी कोई कमेंट मारता है कि तुम्हारा मेरिट नहीं है, कोई नहीं मारता. वो तो उसी को मारता है, एससी एसटी को मारता है कमेंट. ओबीसी में भी नहीं करते हैं, ओबीसी के खिलाफ बोलते हैं. लेकिन आप देखिए जब 2007-8 वाला वो यूथ फॉर इक्वालिटी वाला मूवमेंट हो रहा था, it was OBC reservation, nothing to do with the Dalits or the tribals, but all the slogans and imaginary parties were anti-Dalit and anti-tribal. This shows that the problem is very deep-rooted, and that is why I might disappoint. I don't agree with the people, disappoint those people who are anti-reservation. I don't agree with them. I think reservation should continue, and if it has to continue, it can continue for long. Remember, one of the first documents, I will say, founding documents of India was the Rajamunjay Pact and the Pune Pact, which agreed for reservation, which gave legitimacy to the reservation. Remember, if you had not given that, what was the deal out there? That Dalits will not be counted separately from the Hindu community, right, and given separate electorate, but will be counted as the part of the Hindu community and given reservations. Had that not happened, you'd have lost much more territory at the time of partition, because Hindus would have been minority in large tracts of the country. So I say that the promise of reservation is a social contract on which the Republic of India stands. The people को बहुत लगता है कि रिजर्वेशन हटा दो, कल हटा दो, परसों हटा दो, they don't even understand what is at stake. So this is what I wanted to say. एक अंतिम बात मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से. ये सवाल थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ जी. पहला, SC/ST का आरक्षण देश की आजादी के समय से आ गया था और शेष समाज ने उस आरक्षण को स्वीकार किया था. समस्या आरक्षण से कब उत्पन्न हुई, हमें ये देखना चाहिए. मंडल मूवमेंट क्यों आता है? जब ओबीसी का आरक्षण आता है. तथाकथित ओबीसी जो कि लैंड होल्डिंग कम्युनिटी था, तथाकथित ओबीसी जो कि रिच कम्युनिटी था, उनको जब आरक्षण दिया गया तभी दिल्ली में द स्पिरिट ऑफ प्रोटेस्ट दैट बिगन. राजीव गोस्वामी देन हैपेंड. सो द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी reconciled the fact that SC/ST they deserved reservation because of historical injustices. But when the reservations were given to OBCs, the problem began. सेकेंड थिंग, जो इतना ब्रूहाहा है रिजर्वेशन के ऊपर, हमें एक चीज समझना चाहिए. रिजर्वेशन सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ये प्रोफेसर विवेक कुमार का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है जिससे मैं सहमत हूं वो लार्ज एक्सटेंट. आज भी जो देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 92% है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 8% है. जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो 8% के ही कुछ पदों के आरक्षण की बात कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आरक्षण पे फोकस पूरा दे करके जो बाकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के मुद्दे हैं उनको डाइल्यूट करने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा है. जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो एट्रोसिटीज के मुद्दे हैं, सिर्फ आरक्षण, जात मतलब आरक्षण, कास्ट मतलब आरक्षण, दलित राइट मतलब आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन की बात ही कोई नहीं कर रहा है. सो आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट, द
acceptance of SC/ST reservation and the non-acceptance of OBC reservation by the rest of the community, and second, the futility of focusing too much on reservation when it comes to Dalit issues. 8% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें भी मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे कोई मुश्किल से 1-2% जो सेक्टर है उसी में है थोड़ा बहुत। कुल मिला के शुभ्रष्टा जी पूरे देश में मात्र शायद हजारों की संख्या में जॉब होंगे जहां पे कुछ परसेंट आरक्षित है और उसी में पूरा हल्ला है। जी जी जी। एक हाँ, जो सवाल मैं पूछना चाहती थी वो क्रिश्चियन और क्रिश्चियन कन्वर्जन, टारगेटिंग ऑफ दलित कम्युनिटी, इस चीज को लेकर के था। और एक कमेंट के साथ मैं आप लोग दोनों में से कोई भी इस सवाल को ले सकते हैं। कुछ जो व्यूअर्स हैं जो बहुत आक्रामक होकर के लिखते हैं दलित कम्युनिटी के अगेंस्ट जो लिखते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ 2-3 इंस्टेंसेस मेरे अपने ससुराल पक्ष के अनुभव हैं जहां पे बहुत मुखर होकर के मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती हैं कि किस तरीके से दलित कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा फोर फ्रंट पर होकर के लड़ाई लड़ी है जब इस्लामिक इन्वेजन्स शुरू हुए। उस तरीके से एक प्रथा बताती है वो कि चूंकि वो लड़कियों को ले जाते थे जब जो भी इस्लामिक रूलर्स थे, तो दलित कम्युनिटी के भाई बहनों ने अपनी अपनी जो बेटियां थी शादी करवा दी जाती थी, क्योंकि जबरन अगर शादी होती थी तो करवा देने के बाद वो कहते थे कि पहले दिन मुझे अपने घर पे रखना है बेटी को, कुछ रिचुअल की बात बताते थे। और जब वो भेजते थे अपनी बेटियों को उनके घर जब भेजते थे तो सुअर का जो खून होता है उसमें उनका पांव डुबो करके भेजते थे ताकि बच्चियों की इज्जत की रक्षा हो सके। गुरु प्रकाश जी, आपने मुझसे बहुत कुछ शेयर किया है कि बिहार में जो दलित कम्युनिटी क्यों गांव के किनारे बसी और किस तरीके से जो कल्चरल मोटिव्स हैं उनके, इस पे जरूर आप बात कीजिए। अभिनव प्रकाश जी, आप भी ऐड कीजिएगा अगर आप अपने एरिया के अयोध्या से भी अगर आप कुछ रेफरेंसेस दे पाए तो। देखिए, आधी अधूरी बात कर रही हैं आप। सुअर के खून में क्यों डुबाते थे ये बात बताना बहुत जरूरी है और सुअर का महत्व है जी। मेरी कम्युनिटी दुसाध कम्युनिटी पिग रियरिंग में हिस्टोरिकली रही है और बक्सर या प्लासी की लड़ाई थी, मैं शायद मिस कर रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अंग्रेजों ने पासवानों को रिक्रूट किया और जो फ्रंट लाइन डिफेंस था उन्होंने कहा कि भाई वो सुअरों का बनाओ और पासवानों का बनाओ। तो जब मोहम्मदन रूलर सामने से आए उन्होंने देखा कि यहाँ से सुअरों की फौज शुरू हो गई, वो तो नापाक मानते हैं, तो बेटी को सुअर के खून से लगा करके क्यों भेजना, ताकि वो किसी विशेष वर्ग के नजरों में नापाक हो जाए। इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमें वी डोंट हैव टू शाई अवे फ्रॉम इट सुब्रष्टा जी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। असदुद्दीन ओवैसी बिहार आना चाहते हैं, मांझी के साथ सभा करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, मांझी मना कर देते हैं। मायावती पिछले विधानसभा चुनाव में 95 मुसलमानों को टिकट देती हैं कि फिक्शनल दलित मुस्लिम अलायंस क्रिएट होगा, लेकिन वो असफल हो जाती है। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान में जाके लॉ मिनिस्टर बनते हैं, 48 पन्नों का इस्तीफा पत्र दे करके बांग्लादेश छोड़ करके आते हैं। किस प्रकार उनको अपमान झेलना पड़ा था वहां पे। जो पूरा प्रयास लगा हुआ है, पूरा अकेडमिया, पूरा इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए हैं। अरे कांवड़ यात्रा कौन करता है भाई? कांवड़ यात्रा करते हैं क्या समाज के लोग होते हैं? वो भी करते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन मैक्सिमम दलित ओबीसी समाज के लोग होते हैं। छठ पूजा हमारे यहाँ होता है, कौन समाज के लोग करते हैं? कोई, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी आज आ गए हैं, इस्लामिक फोर्सेस आज आ गए हैं, लेकिन हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सनातन है। और कोई मिशनरी, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई ये ट्विटर हैंडल ये चाह ले कि संस्कृति को हम आक्रमण करके कुछ इसका कम कर लेंगे, वो भ्रम में जी रहे हैं और कुछ नहीं है। और उन सभी भाइयों का, उन सभी बहनों का मैं समर्थन करता हूं जो ट्विटर पे मैं भी कमेंट्स देख रहा था कि कन्वर्जन के लिए क्या करना है। हाँ, कुछ कन्वर्जन्स हुए हैं और कन्वर्जन्स को रोकने के लिए भी बहुत सार्थक प्रयास हुए हैं। और ये ऐसे चाहे जितने फोर्सेस अपने पूरा दम लगा लें, कहीं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डेंट नहीं पड़ने वाला है। गुरु प्रकाश जी, एक चीज पिछले लाइव सेशन में जो हमने किया था उसमें भी एक बार किसी व्यूअर ने ये चीज कही थी छठ के बारे में। मुझे लगता है मीन मेख निकालने से ज्यादा मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि आप कोर क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट देखिए। छठ एक सार्वभौमिक त्योहार है बिहार का, और आधिकारिक रूप से ये जो छठ करती, जो व्रती हैं या जिनके घर में छठ होता है, वो आपको बताएंगी बिना डल्ले और बिना सूप के छठ की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये डल्ला और सूप दलित समाज से आता है। तो इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। और अभिनव प्रकाश जी, इनफैक्ट मैं जो कल्चरल मोटिव्स और जो कर्म की बात करती हूँ, मैं इन चीजों से जोड़ती हूँ उसको कि ये कैसे हो गया कि फिर ये गीत में फिर अब्यूज कैसे आने लग गया दलित समाज के प्रति।
कालांतर में जो गीत या आजकल के भी कुछ गीत अगर आप कहां से अब्यूज आना शुरू हुआ, जब ओरिजिनल प्रैक्टिसेस ये थी। और सूर्य उपासना की परंपरा तो मुझे लगता है वैदिक समाज मतलब वैदिक काल से शायद रही है, ये पुराणों में तो जिक्र बाद में आया इसका। वी हैव ऑलवेज लाइक वर्शिप नेचर वर्शिपर, और आई थिंक नेचर वर्शिप जब हो रहा होगा शायद तब कास्ट सिस्टम ना रहा हो, जब आदि मानव होते हो, तो मैं आई एम जस्ट गिविंग अ वाइल्ड गेस, उस समय से लेकर के आज में वेयर डिड वी एग्जैक्टली गो रॉन्ग? अगेन इट इज अ मिस्ट्री जिसको सॉल्व करना पता नहीं which historian would be able to do justice to this, but this has to be put on record, especially those who constantly target the Dalit community with slurs and with abuses and with their stupidity. And I think every genuine individual, every genuine person from Bihar, UP, wherever, India should feel enraged about this. Ji Abhinav Prakash ji, I'm sorry sometimes I get into a very TV debate mode. See, when you're talking about the missionaries and other these people, remember that why do most of the people convert, especially in the tribal belt and of course the Dalits and lower caste, because Christianity comes as a package. It comes as a package of socio-economic growth. Right? Once you convert to Christianity in a remote village of India, you get access to English education, you get access to a good network. They send your kids all around the country into workshops. They give you English education. They give you healthcare. So remember, it's just a spiritual thing. It's simply that you are seeing a better life on the other side, and that will also always appeal to them. So what is the counter? The counter has to be, first of all, you have to they reform the Hindu society and let's say if someone becomes Hindu, what are the benefits of being Hindu? Right? He should see a visible benefit. So why will he? It's not about retaining the people, it's about attracting the people. If you're so concerned, if someone converts to Hinduism, kya benefit hai? Life immediate kya sudhar aa raha hai? That has to be there. Second point is that then you cannot go about and abuse the state for giving subsidies to the people or giving free education, free healthcare, and call it a freeloader economy. ये बहुत सुनने को मिलता है कि सरकार अगर एजुकेशन देना चाहती है सरकारी स्कूल में या प्राइवेट सरकारी स्कूल में, it's a freeloader economy है, they should not be any subsidy. So get your basics clear. What do you want to do? Because if the state were strong and the people had access to good public services, more than half of the patient conversions will stop in this country. As simple as that. The other point is that we don't know where the caste system comes from, but we certainly know that it did not come with the Muslims or with the Britishers. ये जो कहा जाता है ट्विटर पे आप देखते रहते हो कि ये मार्क्सिस्ट मिशनरी प्रोपेगेंडा है, भाई मैक्सिमम दलित्स हैव नॉट इवन read Marx, nor do they know the missionaries, right? Barring in some South Indian states, no one has met a missionary in his or her life. They are protesting against us because this is what they see in their daily life, and they know उनको किस चीज से दिक्कत है, उनको क्या सुधार करना है. Other point, if the Britishers and the Muslims taught you this thing, if they injected this caste politics and other things, then it should, और ये कहते हैं ना victimhood सिखा दिया सबको, then it shouldn't be the Dalits and lower caste discriminating against the upper caste. ऐसा होना चाहिए था ना. अगर अंग्रेजों ने आपको सिखाया victimhood, जातिवाद भर दिया समाज में, जातिवाद तो जो छोटी जात के उनको जाके करना चाहिए था. हमेशा ऊपर से ज्यादा क्यों होता है, वो क्यों करते हैं? या उन्होंने आपको सिखाया था? जो इस तरह की बात बोलते हैं मैं उनसे पूछता हूँ, क्या अंग्रेजों ने आपको सिखाया था, आपकी जाति को सिखाया था जातिवाद करना? अगर आपको इतना ज्ञान है कि उन्होंने सिखाया तो छोड़ दो करना. सो कि अंग्रेजों ने सिखाया था, ये मुसलमानों ने लाया, this is an old problem, it must be dealt as a social problem. This is what I want to say, Suprashta, because it's a long topic, so it will continue. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. हम लोग 1 घंटे से ऊपर से बात कर रहे हैं, एंड थैंक यू एवरीबडी हु जॉइंड इन टू वॉच दिस. ये इन दोनों लोगों के कॉलम्स आप बहुत रेगुलरली लिखते हैं दोनों, और अभिनव प्रकाश जी शायद हिंदुस्तान टाइम्स में आपके कॉलम्स छपते हैं, है ना? और गुरु प्रकाश जी आप ज्यादातर शायद प्रिंट पे आपके कॉलम्स आते हैं ना? Just asking, it's a very innocent question. I don't understand why do you have to ascribe value to every question has to be a loaded question, na Subrashta ji? It is not loaded at all. I just asked आपके print पे ज़्यादा छपते हैं. Let me be very clear. I have written hundreds of articles for Organizer.org, Panjan and Pioneer as well. So I think print से पहले
प्रिंट से मैंने 10-15 गुना ज्यादा अधिक आर्टिकल इन लोगों के लिए लिखा है। तो ये जो है ये दोषारोपण मत करिए आप। दोषारोपण What is the problem with the print? What is the problem with the Please, print? this is a conversation of both of you. मेरे ऊपर आक्षेप लग गया भाई। नहीं खैर, ये हम लोग इस विषय पे अलग कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं हम लोग। बट नहीं सुब्रष्टा जी, रियली थैंकफुल टू यू दैट इनफैक्ट हम लोग की 2 दिन पहले बात हुई कि बाबू जगजीवन राम जी का स्मरण कैसे करना चाहिए एंड उनको भुलाने नहीं देना चाहिए। बिहार का एकमात्र व्यक्ति जो कि देश का उप प्रधानमंत्री बनता है, बिहार अपने राजनीतिक चेतना के लिए जाना जाता है, अपने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लिए हम लोग बहुत इनफैक्ट हिस्टोरिकली जाना जाते हैं। बट आजादी के बाद से एक ऐसा व्यक्ति जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनता है, इतने लंबे अरसे तक संसद में रहता है, कोई चुनाव नहीं हारता है, उसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग। सो रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम मोस्ट कोर ऑफ माय हार्ट दैट यू अग्रीड दैट वी हैव दिस कन्वर्सेशन एंड अभिनव जी आल्सो केम इन। सो और हालांकि इस इशू पे तो आई थिंक अलग अलग आए, जैसे आरक्षण पे अलग एक कॉन्वर्सेशन हो सकता है, जैमिन के फिक्शनल इमेजिनेशन पे एक अलग कॉन्वर्सेशन हो सकता है, बट आई थिंक इन दिस 1.5 hour we encapsulated a good amount of conversation around the issue. So really thankful to you for organizing this. In fact, let me also, sorry, Abhinav ji, please go ahead. No, I just wanted to thank you for organizing this thing and having me here. I think it was a wonderful discussion which we had, right? And we should continue because we should take a stand against invisibilization of the people. This is what they do. You know, they have made Jagjeevan Ram invisible in the entire thing. And remember, Chaudhary Charan Singh थे, प्रधानमंत्री भी रहे, बड़े नेता थे। ये इंदिरा गांधी ने बोलना शुरू किया कि ये जो है किसानों के नेता है, आपने उनका दायरा तुरंत छोटा कर दिया, सिर्फ किसान के नेता है, कि किसानों के नेता में सिर्फ वो जाटों के नेता होके खत्म हो गए। तो जगजीवन राम को फिर दलितों के नेता क्या है, प्रधानमंत्री था देश का, वो सिर्फ दलितों का पॉलिटिशियन क्यों है? सो वी शुड take a stand against this kind of invisibilization and tagging of the people and treat them in a more neutral manner and see what their historical roles were. But thank you, Subhashta, for organizing this discussion. I would thank you both for coming. I think beyond this formality of thanks and welcoming each other, मैं एक चीज और रखना चाहती हूँ कि I have not been able to do justice to बाबू जगजीवन राम जी's legacy in entirety, क्योंकि मैं portfolios अगर उनका देखूं तो he has been a minister at so many, he has handled so many departments. और जब उन्होंने अपनी मिनिस्टरशिप संभाली तब उन्होंने युगांतकारी काम किए। तो आई कंप्लीटली अग्री विद गुरु प्रकाश जी कि डे लॉन्ग सत्र होना चाहिए था जिसपे कम्युनिकेशंस पे उन्होंने क्या काम किया, एज अ डिफेंस मिनिस्टर क्या काम किया, किस तरीके से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे उनका दखल था, किस तरीके से उन्होंने खाद्यान्न मंत्री के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला तो क्या किया, एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के नेता होने के नाते उन्होंने क्या किया। और गुरु प्रकाश जी और अभिनव प्रकाश जी, मैंने बहुत कॉन्शियसली ये कोशिश की कि जगजीवन राम जी का भी इंट्रोडक्शन एक दलित एक्टिविस्ट और दलित नेता के बियॉन्ड जस्ट जो हाईएस्ट पोस्ट उन्होंने होल्ड किया एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसी के इर्द गिर्द हम बात करें। और मुझे लगता है कि आप लोगों के दलित समाज से आने वाले बुद्धिजीवी लोग, स्कॉलर्स जैसे आप लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में ही इस तरीके के जो मिथक हैं और इस तरीके की जो डेफिनेशंस हैं उनको तोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। प्लीज गिव मी अ प्रॉमिस दैट आप लोग ट्विटर पे और फेसबुक पे द चर्न फॉलो करने के लिए अपने अपने व्यूअर्स को, अपने अपने फॉलोअर्स को बोलेंगे। एंड टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, फॉलो द यूट्यूब चैनल चर्न, क्योंकि इसी तरह की कॉन्वर्सेशन की शुरुआत एक छोटा सा प्रयास है कि टेलीविजन डिबेट के दिन और वो जो झगड़ा है उसके बियॉन्ड आपको शांत बहस हम दे सके। इस कॉन्वर्सेशन के लिए भी हम लोगों ने गुरु प्रकाश जी के थ्रू आई हैड ट्राइड एंड रीच्ड आउट टू मीरा कुमार जी एज वेल, बट मे बी बिकॉज मैंने शायद लास्ट मोमेंट उनको बोला, 2 दिन पहले बोला, इसलिए वो नहीं आ पाई, उनका रिस्पॉन्स नहीं आ पाया। बट आई वुड वांट कि जो पार्टिजन पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठ करके नेशनल और पेट्रियोटिक लेगेसी जो हमारी है उसको आत्मसात करने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करनी पड़े तो मैं जरूर चाहूंगी कि चरण के मंच पर आए, वो उनका स्वागत है। गांधी फैमिली इज द ओनली फैमिली जिससे मुझे कांग्रेस में दिक्कत है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी जो हिस्टोरिकल लीडर्स रहे हैं, ऑल ऑफ देम हैव डन सम अमेजिंग वर्क। थैंक यू अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद।